Good evening, all of you. Welcome back to Ansarkari. So today we are taking up the question from GS1 History from 2021. So question is that to what extent did the role of the moderates it prepare a base for the wider freedom movement? And we have to comment on this. So moderates, they played initial role in preparing the grounds for the organized freedom struggle. So first contribution was in terms of raising political consciousness and the organization in terms of awareness generation. But at the same time, this couldn't create a mass impact because warfare only it was restricted to the elite class or the educated class, we can say. Secondly, demand for the representative institutions that was raised through basically conducting elections for the legislative councils. And they also emphasize that Indian voice should be there in the decision-making process. And these demands for political reforms, they laid the foundation for future demands for self-rule. Thirdly, nationalist education that was spread so they could bring the awareness about education as a tool for social and the economic progress and bring it in its fold, the intellectuals in the freedom struggle. And apart from this, it also had an impact on youth with the future leaders emerging in the form of revolutionaries. Fourth was promoting the idea of united India with the inter-community harmony and the peace. Last was international awareness and influence from the global movements. These were an important part which was taken away by them. So their constitutional and safer approach, it was criticized for being cautious, yet it proved important to prepare ground for the future struggle. So that's all. क्वेश्चन लिखा हुआ है टू व्हाट एक्सटेंट डिड द रोल ऑफ द मॉडरेट प्रिपेयर अ बेस फॉर द वाइडर फ्रीडम मूवमेंट। तो ये क्वेश्चन में तीन क्वेश्चन है बेसिकली। पहला है कि वाइडर फ्रीडम मूवमेंट टू व्हाट एक्सटेंट और रोल ऑफ मॉडरेट प्रिपेयर अ बेस, ये तीन है पार्ट। तो मतलब इसमें आपने बताया है कि रोल ऑफ मॉडरेट प्रिपेयर अ बेस फॉर द वाइडर फ्रीडम मूवमेंट, ठीक है। आपने बता दिया कि हाँ टू व्हाट एक्सटेंट, तो आप 15 मार्क्स का क्वेश्चन था तो आप 3 पेज लिख सकते थे इसको, 2.5 पेज कर सकते। तो उसमें बताते क्यों फेल हुआ, तो राइज ऑफ एक्सट्रीमिज्म, साथ ही साथ लोग को मोटिवेट नहीं कर पाए, वही सेम चीज। हाँ, वो पॉइंट्स क्लियरली नहीं आ पाए बाहर। हाँ, समझ गई। और जो वाइडर फ्रीडम मूवमेंट जो बात है यहाँ पर थोड़ा सा मुझे लगता है कि अगर विमेन और फिर मार्जिनलाइज सेक्शन ऑफ सोसाइटी, तो उसी से वाइडर बनता। हाँ, वो तो मैंने वो बस लिखा है लेके यहाँ पे, आते हाँ, मास इम्पैक्ट, बट वो वाली चीज मतलब क्लियरली हाँ एड्रेस नहीं हो पाई। हाईलाइट। हाँ ठीक है। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे। तो मैंने स्टार्ट किया कि वाइडर फ्रीडम मूवमेंट वुड कंसिस्ट ऑफ रिप्रेजेंटेशन वीमेन, वल्नरेबल सेक्शन सोसाइटी, रिलीजियस एथनिक डाइवर्सिटी। फॉर दैट मॉडरेट sought to prepare a peace by simply holding an INC session in different states based on rotation to connect with locals. They used pleading, pamphlet, petition to win hearts of the British people. Economic critique of British rule was compiled by Nauroji. Their critique reached the million of Indians through pamphlet. So they fought for women's right in education. Age of consent bill was passed. They fought for wider representation of Indian in council. फिर मैं बताया क्रिटिक किया कि however being moderate they could do up to certain extent. Their method was co-opted in a radical way by extremist leader by Tilak BC Pal. By celebrating these festivals, they drew larger crowd as the extremist leader were from the masses. They invoked emotional concept of Bharat Mata, which was less among the moderate. But the moderate methods of pleading, petition, having constitutional faith, prepared the base for the later revolutionary activity. They used constitutional assembly for their propaganda, whereas extremists did on streets. They used strategic support to activity for example, Chapaka brothers. Sometimes their silence on Ghar Wapasi cow riot in northern India were concerning for wider representation among minority. Still, by Swadeshi movement, 1905, moderate like Sundaranath Banerjee showcased every early sign of Gandhian movement, having Swadeshi boycott, etc., giving the indication of wider freedom movement in future. मतलब बेसिकली मैंने कनेक्ट किया, पहले उसका समझा दिए क्यों हुआ है, लिख दिया हाँ कि उन्होंने क्या क्या मतलब किस तरीके क्या क्या होना चाहिए एलिमेंट, फिर मैंने कैसे प्रिपेयर किया और लास्ट में फिर एक्सट्रीमिज्म अच्छा था वो बता दिया मैंने, एक्सट्रीमिज्म क्यों अच्छा था,
उसके बाद मैं बताया लास्ट में कि हाउएवर सुरेंद्र बनर्जी थे, वो भी एक तरह से सपोर्ट करते थे बाकी सबको, और वो एक तरह से नेशन स्टेट्स का एक गांधीयन मूवमेंट था, तो वाइडर था ही, मतलब वाइडर की तरफ जा ही रहा था। तो एक चार भाग में तोड़ा था इसको आंसर। हाँ ठीक है, एडजस्ट कर पाए। यहाँ पे आपने, यहाँ पे थोड़ा सा मेरे को लग रहा है कि फिर से जो आपने स्टार्टिंग में थोड़ा और कम लिखा करता, हाँ मतलब था थोड़ा कि सा वो वो ही ज्यादा है लग रहा है कि जो फैक्ट। उन्होंने क्या चीजें करी, वो ही यहाँ पे थोड़ा सा वो एलिमेंट फिर से दिख रहा है कि उन्होंने क्या क्या किया। जैसे दे यूज कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली, ये सब। ठीक है, यहाँ पे आपने एक्सट्रीमिस्ट का लेके आए तो ठीक है। यूज स्ट्रेटेजिक सपोर्ट ऑफ एग्रीकल्चर के ब्रदर्स, ये सब लेकर समटाइम्स। साइलेंस ऑन घर। इसमें लेके आते, इसमें और उसका और रिफाइनमेंट होता कि दे हम्म। यूज स्ट्रेटेजिक सपोर्ट देयर बाय ब्रिंगिंग रेवोल्यूशनरी इनटू द वाइडर मूवमेंट, ऐसे लेके आते, तब फिर हाँ। कनेक्ट हुआ था क्वेश्चन से। हम्म। फिर लेके आते हैं कि हाउएवर देयर साइलेंस, स्ट्रेटेजिक साइलेंस रिगार्डिंग द घर वापसी एंड काउ राइट इन नॉर्दर्न इंडिया वाज कंसर्निंग फॉर द माइनॉरिटीज, तो वहां पर नहीं कर पा रहे बाय द रिप्रेजेंटेशन। लास्ट में लेके आते हैं कि सुरेंद्र बनर्जी लेड द मूवमेंट विच वॉज अर्ली साइन ऑफ गांधीयन मूवमेंट इन सोच, होता है 1960, ऐसे टाइप्स को छोटा कर देते हैं इसको। हम्म। Okay. यहाँ पे तो आपने इवेंट्स के थ्रू एक्सप्लेन कर दिया। मतलब थोड़ा और ब्रॉडली लिखते तो मेरे को लगता कि थोड़ा और इजीली समझ आ जाता। अभी थोड़ा समझने में प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि आपने बहुत सारी चीजें लिख दी एक साथ। तो थोड़ा और सिंपल करके थोड़ा लिखते। तोड़ के लिखते हैं इसको। हाँ, सिंपल करके और लिखते तो इजीली समझ आ जाता बस। आंचल का आंसर ठीक है, उन्होंने समझा मॉडरेट। दिया मॉडरेट फेस रिस्पॉन्सिबल बेस फॉर्मेशन बिगनिंग रीजनिंग, हाँ ठीक है। मॉडरेट इज प्रिपेयर द बेस फेयर आइडिया ऑफ सेकुलरिज्म वांटेड एंड आइडिया ऑफ कॉपरेशन, ठीक है नीचे का। फिल्म ट्रायंगुलरिटी इनोवेटिव माइंडसेट एडिशन ऑफ इंडियन इन द एडमिनिस्ट्रेटिव रिमेनिंग न्यूट्रल अमंग द ब्रिटिशर, न्यूट्रल, न्यूट्रल तो नहीं था। न्यूट्रल तो नहीं था, ये गलत है पॉइंट। फिर द पेंटिशन आइडिया ऑफ इक्वालिटी फ्रीडम एडमिनिस्ट्रेटिव वैल्यू रोटेशन ज्यादा पॉइंट। हम्म। इसमें आंसर को क्या करना पता है, ऊपर करें इसको इसमें ना आप जो स्टार्टिंग की वो सही है, ठीक है आप बता दिए कैसे रिस्पॉन्सिबल था, फिर आप बता दिए कि कैसे प्रिपेयर किया बेस को, तो आपने बता दिया कि सेक्युलरिज्म के लेके आया, विमेन का पार्टिसिपेशन लेके आया, एडिशन ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव लेके आ गए। फिर आप बताते, हाँ कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज के थ्रू रेवोल्यूशनरी मूवमेंट को सपोर्ट करते हैं। लास्ट समझाते हैं कि कैसे, कि टू व्हाट एक्सटेंट, हम्म। कहाँ तक वो कर पाए, तो कहाँ तक तो आप मिसिंग हो गया ना इसमें, हाँ, मतलब अपने कि आपने बता आइडिया, दिया कि हाँ, अपने हाँ आइडियाज जो लेके आने थे वो वो मिसिंग। नहीं कर पाए, कहाँ तक मतलब एक लिमिट तक ही कर पाए, क्योंकि एक्सट्रीमिज्म वैल्यू बढ़ चुका था सोसाइटी के अंदर में। सब मांग रहे थे आज स्वराज के बारे में, कैसे हम्म। भी स्वराज लेना है थ्रू रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज और अदर और ऑल्सो प्रोटेस्ट, वायलेंट प्रोटेस्ट। फिर आप स्वदेशी जोड़ लेते हैं, बस हो जाता। तो ऊपर तक ठीक है, नीचे वाला जो पैराग्राफ ना आप चेंज। ठीक है। ठीक। So that's all for today in this history session. I hope you have got the points that we raised, and we also got more clarity about how we need to address the questions. So stay connected with us, and that's all for today.